नमस्कार। एक प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें कि डॉक्टर विकास हमसे पूछते हैं, आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड विद द आनापाना, दो आई एम एबल टू गेट वेरी subtle sensation all over body very naturally, but I feel I must get more and more skills on anapanasati, and I feel strongly it is the pillar of vipassana sadhana which also keeps you grounded during your day to day life, which you can practice any time of the day in hard conditions. During anapanasati, when I focus on my breath below the nostrils, I feel I start consciously controlling the breath knowingly and trying to make it either slow or fast somewhere in the background. But I am not able to capture the natural flow of breath do all through my sadhana duration of 1 hour. I'm always very focused on my breath most of the time without much thoughts coming in the mind. I think until I am able to focus on natural breath, anapana is not perfect and effective. Please advise. I have seen your videos on Anapanasati on your channel, but I could not get the pointed answer to my this query. I'm surprised sometime for the 1 hour of the sadhana. I am completely focused on breath, but somewhere slightly in the background, I found I'm trying to control it, either making it is slower or faster very feebly. And second point is other queries during vipassana, my head to toe movement is very slow, sometimes taking more than 15 minutes each. If I go very minutely part by part of the body after 2 3 rounds, my mind becomes agitated and distracted and feel bored. So after 30 minutes around, I lose the concentration. I feel like stopping my sadhana in between. Please advise. So Dr. Vikas, thank you so much for asking this question, and I would be very glad to answer it. तो आपने जो प्रश्न हमसे किया है उस प्रश्न का हम अनुवाद हिंदी में करते चलेंगे और साथ साथ मैं इसका उत्तर भी देता चलूंगा। आपके पूरे क्वेश्चन में से उसके पार्ट बाय पार्ट जो छोटे छोटे पीसीज है उसको हम उठाएंगे और उन पे डिस्कशन करेंगे। आप स्टार्टिंग में पूछते हैं द वेरी फर्स्ट लाइन, आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड विद द आनापाना दो आई एम एबल टू गेट वेरी subtle sensation all over body very naturally. So when we say we are struggling against what? We are struggling against anapana. Then what exactly anapana is? Is just to know your breathing. सांस लेना, सांस छोड़ना, inhaling, exhaling. Why we are struggling against this particular phenomena which is universal, which we are doing every point of time. हर क्षण प्रति क्षण हम ये काम कर रहे हैं, knowingly, unknowingly, consciously, unconsciously. चाहे ना चाहे, मैं नहीं चाहता कि मैं सांस ना लूं, पर लेना है. We are breathing. We all are breathing. Then, when this breathing is all about life, this breathing is all about the energy, the entire universal energy. And this is natural thing. This is the universal thing. जब सांस लेना है और छोड़ना है, हम सो रहे हैं, सोते सोते सांस तो ले रहे हैं, हम बैठे हैं, सांस तो ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं. Then where does this particular word struggle come from? Struggling. Why struggling? Why do we struggle against breathing? अच्छा चलिए, जब ये स्ट्रगल होता है तो क्या ये स्ट्रगल उस वक्त होता है जब हम सो रहे होते हैं, या हम लेक्चर दे रहे होते हैं, या हम एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में होते हैं, या हमारे कुछ स्टूडेंट्स हमसे कोई क्वेश्चन पुट करते हैं और हम उसका आंसर कर रहे होते हैं, या जब वो क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है तो हमारा माइंड, हमारा अलर्टनेस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सब कुछ उसकी तरफ होता है और उसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनता है, सो दैट आई शुड बी एबल टू आंसर वेरी प्रॉपरली. तो जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो क्या हम स्ट्रगल करते हैं, या हम पिक्चर देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, फैमिली के साथ आउटिंग कर रहे हैं, कोई भी
प्लेजर और बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, एनीथिंग, व्हाटएवर वी आर डूइंग, क्या तब वो स्ट्रगल होता है? कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तब ये स्ट्रगल होता है? नहीं। तो जब हम आनापाना के लिए स्पेशली बैठ रहे हैं, तब ये स्ट्रगल क्यों हो रहा है? तभी हम ये महसूस क्यों कर रहे हैं? उसको रिलेट कर रहे हैं स्ट्रगल से। ये जब हम स्ट्रगल महसूस करते हैं, ये हम तब करते हैं जब हमारे मन में आनापाना की एक छवि होती है। आनापाना सती की हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर हमने सीखा है, पढ़ा है, और उनको हमने माइंड में रखा है। अब जो हम श्वास स्वाभाविक रूप से ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं, जो कुछ भी है, और जो कुछ भी हम सोचते हैं कि आनापाना ऐसा होना चाहिए, इस डेफिनेशन में, और जो डेफिनेशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं सत्यता से इस क्षण, उसमें जब हम तालमेल नहीं देखते, मतलब उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेफिनेशंस, जो हम समझते हैं और जो हम महसूस करते हैं। जब ये दोनों वेरिएशंस अलग अलग होती हैं, जब ये दोनों डेफिनेशंस अलग अलग होती हैं, तब ये शब्द हमारे अंदर जागृत होता है, जिसे हम स्ट्रगल वर्ड यूज कर रहे हैं। यू सेड आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड विद आनापाना. Why are you struggling hard to breathe? Why are you struggling hard to know about your inhaling and exhaling? Why too hard? Why it is so hard for you? क्या हो रहा है? क्यों है हार्ड ये? अब हम थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी हम जान जाएंगे. Though I am able to get very subtle sensation all over body very naturally, that's very good. But I feel I must get more and more skills on Anapanasati. Okay, so sir, एक बात बताएं. How do you define that sentence, more and more skills? When you say more and more skills, what we are referring to? हम किस चीज को रेफर कर रहे हैं? More and more skills. क्या हैं वो skills? How do you define those more skills? How do you clarify that yes, these are the category of more skills and these are the category of less skills? कैसे हम उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं अपने अंदर कि हाँ, ये ज्यादा स्किल्स हमें और चाहिए, या जो अभी मैं कर रहा हूं ये कम स्किल्स हैं? देयर शुड बी, देयर मस्ट बी सम मोर स्किल्स. I'm not sure what are those more skills, but yes, there must be some more skills. If we are thinking into this pattern, then how do you define the definition of that more skills? Now, very important to understand, the moment your mind starts seeking for those more skills, your concentration is gone, your anapana is gone, your vipassana is gone. There is no such thing like more skills. There is no such things like you are having less skills. There is no such things like this guy is having more skills, this guy is having less skills, I am having the greater skills, you are having the superior skills. There is nothing called like skills. Anapana is just to focus on the breath, incoming and outgoing breath. श्वास आया, श्वास आया, बात खत्म. श्वास गया, बात खत्म. जैसा था, धीरे से आया, ज्यादा गया, धड़कता हुआ आया, धड़कता हुआ गया, फड़कता हुआ आया, फड़कता हुआ गया, गर्म आया, ठंडा गया, ठंडा आया, गर्म गया, जैसा हुआ वैसा हुआ. देयर इज नो सच थिंग्स दैट अभी ऐसा हुआ तो कुछ हो तो मैं मोर स्किल्स आई शुड गेट एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंगली. नो, कुछ नहीं होने वाला, कोई स्किल्स नहीं है. दिस वेरी मोमेंट, वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर द कंडीशन योर ब्रेथ इज हैविंग, वॉट एवर सेंसेशंस यू आर गेटिंग, दिस इज द fact of skills. This is the more skills, this is the less skill, everything skills you do have, ever you will have this point of time you are having. ब्रेथ आपने स्वाभाविक रूप से जैसी आ रही है, जैसी जा रही है, बस उसको जाना, जाना, कुछ नहीं किया, बस जाना. ऐसा हुआ, जाना, ना अच्छा माना ना बुरा माना, और इसी चीज को लेते हुए, इसी चीज को समझते हुए आपने इस क्षण की सत्यता को स्वीकारा. सो डोंट बॉदर अबाउट स्किल्स.
Just concentrate on incoming and outgoing breath and accept the fact of reality of this moment. That's it. With very alert mind, to know about any slightest wandering of the mind for anything. यहाँ माइंड हिला हल्का सा और मुझे पता चला ये हिला, सेंसेशंस कुछ हुई मेरे शरीर में, सेंसेशंस कुछ हुई मेरे मन में, श्वास पे या तो तेज हुआ या धीरे हुआ या तिलमिलाता हुआ, कुछ ऐसा भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, पर कुछ चेंज हुआ। बस उस बदलाव को साक्षी रूप से पहचाना, उसे सिर्फ माना कि हाँ ये हुआ एंड दैट इज द फैक्ट। बस जब आपने चीज को स्वाभाविक रूप से स्वीकार लिया, दैट इज द सुप्रीम स्किल। कोई मोर स्किल की हमें प्रतीक्षा नहीं करनी। बात खत्म। दिस इज ओनली आनापाना, दिस इज ओनली आनापानसति, and that is the greater skill. To know the fact and do not seek for any kind of greater skill. Whatever you are having this point of time, it is the biggest skill. Have this moment and do the anapana as you are taught to be. That's it. आगे आप लिखते हैं, I feel strongly it is the pillar of vipassana sadhana which also keeps you grounded during the day-to-day life, which you can practice any time of the day in the hard conditions. You're very right. Vipassana sadhana keeps you grounded during the day-to-day life, not even the hard times, especially in the good times. हार्ड टाइम्स में तो हम ग्राउंडेड नहीं है या हैं, इसका बहुत जल्दी हम अनुमान लगा लेते हैं, पर जब हमारे गुड टाइम्स होते हैं उस वक्त हम ग्राउंडेड नहीं होते गुड टाइम्स में, और उस चीज को हम कभी समझ भी नहीं पाते। हम हवा में उड़ रहे होते हैं, हम इतने एक अलग ही हम उत्साह में होते हैं। कई बार वो घमंड भी होता है, अहम भी होता है, और हमारा मस्तिष्क उसे स्वीकारता भी नहीं है, और हम अपनी ही मैं के अंदर होते हैं कि देखिए ये जो गुड टाइम्स हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, और माइट बी सम अदर रीजंस ऑल्सो। तो जब गुड टाइम्स हैं तब ग्राउंडेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस वक्त आनापाना करना और विपස්සना करना गुड टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड टाइम्स में हम ग्राउंडेड नहीं है, इसका अनुमान बहुत जल्दी लग जाता है। तो चाहे हम ग्राउंडेड हैं या नहीं है, उसे हम ज्ञात कर लेते हैं और फटाफट हम विपස්සना और आनापाना करना नियंत्रता से शुरू कर देते हैं। लेकिन बात तभी है जब हम गुड टाइम्स में उस चीज को अपनी प्रक्रिया में रखें, तो पता रहे कि जो गुड टाइम्स के साथ साथ कुछ त्रुटियां भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो ना जुड़े। आगे आप लिख रहे हैं, ड्यूरिंग आनापानसति व्हेन आई फोकस ऑन ब्रेथ below the nostril, I feel I start consciously controlling the breath knowingly and trying to make it either slow or fast somewhere in the background, but I am not able to capture the natural flow of the breath through the sadhana duration of 1 hour. I am always very focused on my breath most of the time without much thoughts coming in my mind, I think, until I am able to focus on the नेचुरल पर आनापाना इज नॉट परफेक्ट एंड इफेक्टिव प्लीज एडवाइस। देखिए विकास जी, जब हम आनापाना करते हैं तो आनापाना में गुरुजी ने हमें बस सिखाया है कि हम इस पर्टिकुलर पार्ट पर फोकस करते हैं, और उसे जितना अपना छोटा करते चले जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा मन उतना ही सूक्ष्म होता है, हमारा मस्तिष्क उतना ही सूक्ष्म होता है। तो अब करना क्या है, हमें यहाँ पर अपना मन लगाए रखना है और श्वास को देखना है, चाहे कैसा भी आ रहा है कैसा भी जा रहा है, कैसा भी आया जैसा भी गया, सांस कैसा आ रहा होगा, स्थिति जैसी होगी, परिस्थिति जैसी होगी, मन का स्वभाव जैसा होगा, मेरे पिछले अतीत के जो भी कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो कुछ भी अभी घटित हो रहा है वैसे संस्कार बन रहे होंगे, या मौसम की जो सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, लू है, आंधी है, उसका कुछ प्रक्रिया मेरे शरीर पर पड़ रही होगी। तो उसी प्रकार से ये सब चीजें जो हैं ये बनती हैं और बिगड़ रही होंगी, और मेरा सांस वैसा ही हो रहा होगा।
जिस वक्त अभी हमने जो बात करी कि जिस वक्त हम लेक्चर लेते हैं, जिस वक्त हम मूवी देखते हैं, जिस वक्त हम कार चलाते हैं, जिस वक्त हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उस वक्त भी तो हम श्वास ले रहे हैं। क्या उस वक्त हम नोइंगली या अननोइंगली वाली कोई बात समझते हैं? नहीं समझते। वो सांस जैसा होता है वैसा ही आता है, वैसे ही चला जाता है, और हर पल प्रतिपल हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, एवरी सेकंड, राइट। और हम श्वास लेते रहते हैं, श्वास तो कभी नहीं रुकता। सांस सो रहे हैं तो सो रहे हैं। अब ये सब जैसे सांस हमारा पूरा दिन चल रहा है, वैसे ही सांस इस वक्त चल रहा है। द मोमेंट मैंने इस समय अपना आनापाना करना शुरू किया, तो अभी जो मेरा आउटवर्ड जितने भी फोकस था, वो सब कुछ मैंने फोकस करके अपने यहाँ पे ले आया। अब जिस वक्त मैं यहाँ पर फोकस लेके आया, तो मैंने देखा कि यहाँ से तो सांस आ रहा है और जा रहा है, सांस आ रहा है और जा रहा है। कुछ तो अंदर आ रही है हवा, कुछ बाहर जा रही है। श्वास अंदर भी आ रहा है, बाहर भी जा रहा है। कुछ कभी किसी तरह से आ रहा है, कभी किसी तरह से आ रहा है, चाहे स्लो आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है। हो क्या रहा है आपके साथ? ये जो फिनोमिना हो रहा है, ये मेरे साथ भी वही हो रहा है, आपके साथ भी वही हो रहा है। पर आपका जो मन है, वो क्योंकि बहुत ही सहजता से उस श्वास को पकड़ रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग। तो ये जो श्वास इनकमिंग और आउटगोइंग वाला जो हमारे नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग हो रही है, इसको आपका माइंड ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि क्या ये नेचुरली काम हो रहा है, या नोइंगली या नोइंगली हो रहा है, या मैं कहीं इसको फोर्स तो नहीं कर रहा, या इसको कंट्रोल तो नहीं कर रहा, कहीं मैं इसे तेज तो नहीं कर रहा, या मैं किसी स्लो तो नहीं कर रहा। अब ध्यान से समझें, जो कुछ भी हो रहा है, यदि आप कर भी रहे हैं या आप नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप अगर कर भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है नियंत्रता से आप कॉन्टिन्यूसली अपनी नॉस्ट्रल्स पे, अपने आनापाना पे, अपने अपने श्वास पे फोकस कर रहे हैं। फोकस कर पा रहे हैं तभी तो आप ये जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि आप वहां पे नोइंगली या अननोइंगली उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब आप फोकस कर पा रहे हैं। तो फोकस करिए। आपको लग रहा है ना आपने स्लो कर दिया, आपने तेज कर दिया, फॉरगेट अबाउट दिस पर्टिकुलर लगना। इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर knowingly or unknowingly controlling your breath, forget about this particular thought process. If you are doing it knowingly, very good. If you are doing it unknowingly, very good. The best part is you are focusing on the breath. So forget about this particular thing. ठीक है ना? हो जो आप आनापाना कर रहे हैं, हमारा मोटिव आनापाना से अपना मन को एक बार स्थिर करना है। एक बार मन स्थिर हो गया, उसके बाद हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विपස්සना करना, सेंसेशंस को देखना। आगे बढ़ जाओ, पार्ट बाय पार्ट सेंसेशन देखने स्टार्ट कर दो। जहां मन विचलित हो, फिर वापस से आनापाना करने लगो, फिर आगे बढ़ो। ये तो हमें पता है, यही प्रोसेस है। चाहे सेंसेशन करो, चाहे आनापाना करो। इस समय क्या करना है, इस समय की क्षण की सच्चाई क्या है, वो आप ही निर्धारित करेंगे, और आपका मन ही फैसला करेगा, आप ही फैसला करेंगे कि ये जो क्षण है मुझे आनापाना करना है या सेंसेशन देखनी है, विपස්සना करनी है। तो उस प्रकार से आगे बढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें। आनापाना में सारा समय व्यर्थ ना करते हुए कुछ समय ये भी ध्यान रखें कि आपको विपස්සना करना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। आनापाना के ही उस चक्कर में अगर हम लगे रहेंगे कि ये नोइंगली कर रहा हूँ, मैं अनोइंगली कर रहा हूँ, अनोइंगली कर रहा हूँ, नोइंगली कर रहा हूँ, बस आपको ये पता चल गया ना कि आप बैठे हैं और आपका मन सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म हो गया मेरा मन, और आपने ये भी लिखा है कि आप सेंसेशन को, सबस्टाइल सेंसेशन को भी पकड़ लेते हैं, तो बस बात खत्म, विजय प्राप्त हो गई। आगे बढ़ना शुरू कर दिया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, जब आप यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो उस वक्त आपका जो माइंड है वो बहुत धीरे 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 आगे बढ़ता है। वो हर एक पार्ट बाय पार्ट पे जाता है और सेंसेशंस को पकड़ता है, और फिर सबस्टाइल सबटाइल सेंसेशन को पकड़ने की कोशिश करता है। सबटाइल सेंसेशन उसे क्योंकि समझ में नहीं आती, उसको मिलती है कई बार, कभी नहीं मिलती, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो उसे टाइम इतना लग जाता है इस काम को करते करते, पूरे एक शरीर का चक्कर लगाते लगाते, कि आपको मन ऊब जाता है। अच्छा,
अब जो मन ऊब जाता है और फिर माइंड थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इसकी दो चीजें हैं, ध्यान से समझ लें। आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका भी उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आए कि माइंड ऊब रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, माइंड ऊब रहा है, तो इसमें एक तो पहली बात, सबटाइल सेंसेशन को ना पकड़ते हुए कोशिश ना करें। इस वाले पार्ट में आए, कोई सेंसेशन मिली, हाँ मिल गई। भारी मिली, नहीं सबटाइल मिली, कौन सी मिली, भारी है। आप बहुत सबटाइल सेंसेशन को ना ढूंढे, आगे बढ़ जाए। यहाँ कौन सी मिली, जैसी भी मिली, मिल गई ना, आगे बढ़ जाए। यहाँ मिल गई एकदम, जैसी सेंसेशन मिल गई, आपको इशारा मिल गया आगे बढ़ने का, बस आगे बढ़ गए, 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 आगे बढ़ गए। उस जगह ठहर कर उस सेंसेशन के अतिरिक्त अंदर घुसने की कोशिश ना करें। आपको एक बहुत बड़े हिस्से में एक तरीके की बड़ी संवेदना मिली, एक अलग तरीके की झंझनाहट मिली। आप सूक्ष्म झंझनाहट को ना ढूंढें, सूक्ष्म संवेदना को ना ढूंढें, आगे बढ़ जाए। जब आप इस प्रकार से आगे आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, तो आप शरीर का जल्द से जल्द चक्कर लगा पाएंगे और मन उबेगा नहीं। जब आप ऐसे कुछ तरीके की, इस तरह की जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, इसको कुछ समय तक करते रहेंगे, तो आपका मन अभ्यस्त होगा कि आप जब इस तरह से करते हुए चल रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी सबटाइल सेंसेशन जो है, जो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, उनको पकड़ने की अभ्यस्त हो जाएगा आपका माइंड, और आप तब पकड़ लेंगे। आपको एक ही जगह बहुत देर तक ठहरना नहीं पड़ेगा, तो आपको चक्कर काटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप फटाफट वो काम करेंगे। और जैसे गुरु जी कहते हैं ना, धारा प्रवाह, वो आपको बहुत जल्दी से मिलेगी, बहुत तेजी से पूरे शरीर की संवेदनाएं आपको महसूस होंगी। और इसी के साथ जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखने वाली वो ये है कि जब भी मन उबने लगता है ना, तो उस उबने की भी एक चंचल सी संवेदना होती है मन में, एक अलग अलग सी छटपटाहट होती है बंधन की, कि अब मैं उठ जाऊं, क्या हो रहा है, इतनी देर हो गई, मन उब रहा है। उस उबने भी क्योंकि एक सेंसेशन है, उस उबने की भी एक अपनी ही तरंग है, उस उबने की ही एक अपनी ही संवेदना। आपके आनापाना में भी आपकी ब्रीदिंग हल्की सी डिस्टर्ब होगी, उसको भी सहज भाव से जाने, साक्षी भाव से जाने, उसको भी एक्सेप्ट करें एज अ रियलिटी। डू नॉट ट्राई टू चेंज इट। हाँ, इस क्षण की सच्चाई है, मेरा मन उब रहा है और ये सब हो रहा है, बस इसे भी देखता चलूं कब तक हो रहा है। तो आप जो छटपटाहट है ना, उससे भी विजय प्राप्त कर जाएंगे। तो बस मेरा कहने का मतलब इतना ही है सर, कि एक तो मोर एंड मोर स्किल्स, और दूसरा कि एक ही पर्टिकुलर जगह पे सबटाइल सेंसेशंस को, या किसी भी एक पर्टिकुलर अनोखी सेंसेशंस को वहां पर देखने की, ढूंढने की हम चेष्टा ना करें, और आगे बढ़ते चले जाएं। यदि तो हम नहीं कर रहे तो बहुत अच्छा, यदि कर रहे हैं तो उसको शांति से, जो कुछ भी हमें मिला बस उसे पकड़े और आगे बढ़े, पकड़े आगे बढ़े, पकड़े आगे बढ़े। जैसे जैसे हम इस अभ्यास को करेंगे, हमें हमारा जो संवेदनशील मन है, जो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, उसको पकड़ने के लिए ज्यादा अभ्यस्त होगा। और जो आना पाना हम जब कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग जैसी भी है मेरी इस वक्त, जैसी भी सांस आ रहा है, जैसा भी जा रहा है, क्योंकि मैंने उसको अब सहज भाव से देखना शुरू कर दिया, तो मेरे मन को ऐसा लग रहा है कि मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते, पर हमारा मन को लगता है कि कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब उसे देख रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। पर मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे फिर भी लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं देख नहीं रहा था इस चीज को, क्योंकि मैं अभी तो लेक्चर ले रहा था, अभी तो मैं ड्राइव कर रहा था। लेकिन क्योंकि मैं अब अपने घर पे आके साधना में बैठा हूँ और आनापाना करना शुरू किया, तो मुझे लग रहा है मैं अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं या तो उसे तेज कर रहा हूँ या उसे धीमा कर रहा हूँ। पर सत्यता ये है कि शायद मैं कर ही नहीं रहा, और अगर मैं कर भी रहा हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो विवाद है ना मन का, क्या मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, क्या मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, क्या मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, इस विवाद को भुला दें। क्योंकि जो विवाद है, ये आपके कॉन्सेंट्रेशन मन को, आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड मन है, उसको स्थिर नहीं रहने देगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा भंग करता रहेगा, आपकी एकाग्रता में हमेशा विघ्न डालता रहेगा। तो जैसा भी हो रहा है, जैसा नहीं हो रहा है, इस क्षण की जो सच्चाई है उसको स्वीकारें और आगे बढ़ें। बात खत्म हो गई। ऐसी गुरुजी ने सिखाया वैसे ही करते चलें। और किसी भी प्रकार की मोर एंड मोर स्किल के लिए भी राग मत उत्पन्न होने दें।
अगर इस वक्त मैं अपने श्वास को कंट्रोल कर भी रहा हूं तो उसके लिए द्वेष भी उत्पन्न ना होने दें। ना राग हो ना द्वेष हो, किसी भी प्रकार का, चाहे अंदरूनी चाहे बाहर का, लेकिन ना राग ना द्वेष। शांति से जो क्षण की सच्चाई उसे स्वीकारते चलें। और मैं आशा करता हूं कि मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे पाया हूंगा। अगर आपका कोई और भी प्रश्न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।